हम लड़ेंगे। Watch Andolan only on Lemon News and Channel One. We are here, we are talking about the Federation of Cooperative Societies in Mumbai. I am Pradeep Nambiar. I am sitting with the people who are going to contest the elections. Mumbai, the base, Maharashtra. You talk about the biggest cooperative sector movement. You talk about more than 1 lakh crore of rupees of net worth involved in cooperative sector in Maharashtra. When you come to Mumbai, you got more than 30,000 societies who are affiliated to this Federation of Cooperative Societies. We the people, the preamble to the Constitution, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. We talk about liberty, we talk about democracy, and then comes elections. Elections round the corner for the Federation of Societies in Mumbai, the Federations of Housing Societies in Mumbai. We are going to ask the people, because here are the contestants. They want to contest because जो लोग वहां पर बैठे हैं 35 years से वही लोग वही कमिटी है. आज इनके हिसाब से the time has come for change. The time have come for infusing the democratic process. What is the status? Elections है. आपका कहना कि 35 years से वही कमिटी है. Need for a change. बोलिए. डेफिनेटली मुंबई की जनता को चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि फेडरेशन को जो काम करना चाहिए वो काम आज तक हुआ नहीं है. कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन के मेंबर इसलिए बनते हैं कि ताकि उनको कुछ राइट्स मिले, उन्हें उनसे कुछ हेल्प मिले. ये फेडरेशन का काम था कि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मुद्दों को कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिसर से वो उससे मिलके बात करके उस मुद्दे को सुलझाते. लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं. ये वही लोग हैं जो चुन के आते हैं, फिर 5 साल तक किसी भी सोसाइटी में जाके किसी भी मैनेजिंग कमेटी से ये नहीं पूछते कि आपके प्रॉब्लम क्या है, हम उसको उन मुद्दों को सुलझाएंगे. चुनाव आया है, फिर ये मुंबई की सोसाइटी में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद फिर 5 साल ये दिखने वाले नहीं हैं. अब जनता को चाहिए कि इसे चेंज करे और अपने मुद्दों को लेके उस मुद्दों का हल क्या है उसके हल के लिए लड़े. This is what they say, लोगों के हल के लिए रहे, because we are talking about 30,000 cooperative housing societies in Mumbai. और मुंबई में इनके साथ आया. You're talking about vertical expansion. You're talking about deemed conveyance. You're talking about need for redevelopment. There is no land available. The only way upwards for development for housing is vertical upwards. Vertical जाना पड़ेगा. उसके लिए redevelopment process है. Deemed conveyance है. इनका कहना है कि the federation, existing federation, has failed in its duties to provide justice to housing societies in Mumbai. आपको क्या लगता है, आपके आने से अभी समस्या क्या है और आप क्या समाधान करेंगे उसके लिए? Yeah, you can speak a little bit because you know about this particular issue for some time. Yeah, we'll be providing proper guidance for redevelopment, deemed conveyance, and as federation has failed to give guidance and make necessary arrangement in different parts of Mumbai, so we will be making arrangement in different parts of Mumbai so that it is convenient for all the members to get the guidance. Second thing, first of all, we'll go for a website which the federation, for no known reason, has failed to provide. And election voting also, they have only one center which is totally inconvenient for the members to vote. And there will be so many things which people expect from the federation and it is not being done. We'll get back to you because the basic issues affecting Mumbai cooperative society, cooperative housing societies in Mumbai are the managing committee, the way the committee is run. They talk about how do you become a member of the committee. You got certain issues, statutory M20 bonds as a rad kar diya, but that was a big issue before the inquiry by register. Any directive in public interest, how a managing committee can enforce. आज के तारीख में cooperative societies में सबसे अहम
मुद्दा यही है कि रिकवरी है, डिफॉल्ट पर रिकवरी कैसे होगा, ये सब चर्चा हम करेंगे एक के बाद एक. बट वील गो टू दिनेश सिंह. ही इज आल्सो अ कैंडिडेट आउट हियर. ही नीड्स टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम्स दैट द फेडरेशन और विद द पीपल, द हाउसिंग सोसाइटीज टुडे आर फेसिंग, एंड हाउ इज दिस कमिटी गोइंग टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर दैट. समस्या है, समस्या क्या है, आप समाधान कैसे करने वाले हो, ये एक चर्चा का विषय है. समस्या क्या है दिनेश जी? सबसे पहली बात है कि ये जो 30,000 सोसाइटियां मुंबई में हैं, इसमें से सिर्फ 17,000 सोसाइटियां फेडरेशन में रजिस्टर हुई हैं. तो सबसे बड़ी बात है कि बाकी की 12-14,000 जो सोसाइटियां बच गई, इन तक हम क्यों नहीं पहुंच पाए. ये सबसे बड़ी फेलियर है. पहले की जो फेडरेशन अब तक चल रही है 35 सालों से, वो कर नहीं पाए इसको. ये हम चाहेंगे कि अगर हम जीत के आ रहे हैं तो पहले हम इन 12-14,000 सोसाइटियों के पास पहुंचे, अच्छी तरह से उनको समझाएं कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो हमसे जुड़ेंगे. उसके बाद जितनी भी उनकी तकलीफ़ें हैं, जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल आती है डिफ़ॉल्टर्स की. हर सोसाइटियों में 1, 2, 4 डिफ़ॉल्टर्स होते हैं और वो किस तरीके से उनसे पैसे निकालना चाहिए ये किसी को पता नहीं होता. और उसकी मदद भी फेडरेशन कर रही है या नहीं, वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि वो हमें करना ही होगा. This is a problem. You got a problem here. समस्या है because हम एक सब basic problems in cooperative societies, housing societies in Mumbai right now is deemed conveyance. Right now is recovery in most of the cases. Right now बहुत सारे ऐसे matters हैं, लोग भले default किया, जो interest charge करते हैं that is so high. So there has to be a balance and people want answers and the answers are not cheap. It is expensive. Legal, the law has become too dear. You need to have it cheap. आप भी इस contest है particular association में, you are a contestant. मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो यही होगा कि लोगों के पास जाना है, पर्सनली मिलना होगा, क्योंकि पुरानी जो फेडरेशन है हर किसी के पास नहीं जाती है. तो हम हम जाएंगे, खुद हर एक सोसाइटी के पास जाने की कोशिश करेंगे. That's what they say. They say. Now let us come to problems. आप भी इस विषय है, तो we need to understand आज वर्टिकल डेवलपमेंट, हाउसिंग सोसाइटीज, जितने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है, उनके सामने एक ही चीज है कि रीडेवलपमेंट में हम कैसे जाएं. रीडेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? आपने कहा कि जो डायरेक्टिव सरकार ने जो डायरेक्टर्स इन पब्लिक इंटरेस्ट 79A के विषय में फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज का क्या रोल था, उन्होंने क्या इनपुट्स दिया. बट 79A डायरेक्टिव में जो डीम कन्वेंस है, रीडेवलपमेंट है, इस मुद्दे पर स्टेटस क्या है और क्या क्या उसमें हो सकता है फर्दर वेयर रीडेवलपमेंट इज कंसर्न. जहाँ तक रीडेवलपमेंट का सवाल है, स्टेट गवर्नमेंट ने 3 जनवरी 2009 को एक डायरेक्टिव निकाला है अंडर सेक्शन 79A ऑफ 1960 ऑफ MCS एक्ट. उस डायरेक्टिव का अगर सही ढंग से पालन हो तो लिटिगेशंस के कहीं पे भी कोई मतलब ऐसा रूम छोड़ा नहीं जा सकता है. क्लियर कट है, 75% ऑफ द मेंबर इफ दे आर एग्रीइंग विद द रीडेवलपमेंट कॉन्सेप्ट देन ओनली द सोसाइटी कैन प्रोसीड विद द रीडेवलपमेंट. अभी इसमें क्या होता है, बहुत से लोग इसको शॉर्टकट करके ये कहते नहीं, डिप्टी रजिस्ट्रार जो उपनिबंधक है सरकारी संस्था का, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, नहीं, उसके कंसेंट की जरूरत नहीं है. क्लियर कट डायरेक्टिव आपको उसका कंसेंट लेना है. उससे क्या होता है कि हर एक चीज वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, कोई भी मेंबर हाँ ना ये कुछ बोल नहीं सकता है. क्लियर कट होगा प्रपोजल क्या रखे गए थे, कितना बैंक गारंटी रखने का सवाल था, ये सारी चीजें आपका रिकॉर्डिंग में आ जाएगा. और जब उस चीज को आप क्रॉस करते हो तो ये सब ऑफ पेपर रहेगा और आप लिटिगेशन के लिए जा ही नहीं सकते, आपके पास एविडेंस नहीं होगा. जहां तक डीम्ड कन्वेंस का सवाल है, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक स्टेप है कि इन्होंने सोसाइटी को डीम्ड कन्वेंस देने का एक प्रोविजन बनाया अंडर मोफा एक्ट. मोफा एक्ट में क्या था कि सोसाइटी रजिस्टर होने के 4 महीने के अंदर डेवलपर को कन्वेंस उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सोसाइटी के नाम पे देना था, लेकिन वो देते नहीं है. उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी होती है, लेकिन क्रिमिनल केसेस के लिए आप जाओ तो 20 साल लग जाते हैं, केस एडमिट नहीं होता नहीं है. डीम्ड कन्वेंस में अवेयरनेस की जरूरत है. आज अवेयरनेस कौन दे रहा है? बाहर के लोग दे रहे हैं, ना कि फेडरेशन या मुंबई डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन या उनके कोई भी डायरेक्टर्स. अवेयरनेस की जरूरत है. अवेयरनेस के साथ साथ आप एक ऐसा लीगल एक एड आप दीजिए सोसाइटी को, जो सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके रजिस्ट्रार के सामने, जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार है जिसके पास पावर है डीम्ड कन्वेंस देने का, उनके पास रिप्रेजेंट करें और उनको डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर आप सोसाइटी को दीजिए. अब सवाल अगर 6 महीने में ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस व्हाट आई हैव ऑब्जर्व विद इन 6 मंथ्स द मैटर्स आर गेटिंग डिस्पोज्ड. जहां नहीं होता, एक फेडरेशन का एक ये
होना चाहिए कि फेडरेशन उसमें इंटरफियर करे, क्योंकि क्या होता है जब फेडरेशन इंटरफियर करेगा तो फेडरल बॉडी जो है इसके पास बहुत से पावर होते हैं, उस पावर के तहत जो चीज़ नहीं इंप्लीमेंट हो पा रही उसको इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, लेकिन फेडरेशन यहाँ फेल हो जाती है। दूसरा, डीम्ड कन्वेंस में जो करप्शन की बात आती है, देन ऑल द गाइडलाइंस आर वेरी मच क्लियर, इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, करप्शन के कोई उसमें चांसेस नहीं है। देन ऑल्सो चूंकि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ गाइडेंस, उसकी वजह से लोग वहां अटक जाते हैं। बाकी देयर इज नो करप्शन इन डीम्ड कन्वेंस, इट्स अ वेरी फेयर डील फॉर द सोसाइटी एंड द डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार। एंड अगर फेडरेशन अगर इस बीच में आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि करप्शन जैसा वर्ड शायद जो मिसकॉन्सेप्ट है लोगों के अंदर, ये चीजें बीच में नहीं आएंगी। This is a problem. This is a problem when we're talking about deemed convents, because today, out of the 30,000 societies, majority of them are in a state of dilapidated condition. 30,000 के आसपास सोसाइटीज में मेजॉरिटी डिलैपिलेटेड कंडीशन में है, वो रहने के लायक नहीं है। बरसात में तो पूरा पानी गिर जाता है, एक दूसरे सोसाइटी में झगड़ा चालू हो जाता है। तो ये डिलैपिलेटेड बिल्डिंग्स जो है मेजॉरिटी 30,000 में, फेडरेशन की तरफ से आपने तकलीफ क्या देखा, एंड व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द आंसर? आप कैसे इसको स्पीड अप? देखा कि 6 महीने के अंदर होना चाहिए, 6 महीने के अंदर डीम्ड कन्वेंस क्लियर होना चाहिए, मगर नहीं हो रहा है। इट इज नॉट हैपनिंग, देयर इज रीडेवलपमेंट प्रोसेस। आई विल फर्स्ट टॉक टू यू, बोलिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा सहायक सहकार पैनल जो खड़ा हुआ है आज फेडरेशन के अंदर, ये पैनल पुराने जो फेडरेशन में जो मजा करते आ रहे हैं, ये सारे काम उनके थे कि वो सारी सोसाइटियों के पास जाते और उनको उनकी समस्याओं का समाधान करते। ये उन्होंने नहीं किया है, आज तक उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया है। लेकिन हमारा सहायक सहकार पैनल इन चीज़ों के मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा अगर ये जीत के आते हैं तो। जैसे डीम कन्वेंस है, डीम कन्वेंस की गाइडलाइन आज लोग अपनी प्राइवेट दुकानें खोल के रखे हुए हैं, सब एडवोकेट वगैरह वो अपना मजा मार रहे हैं, लेकिन हमारा सहायक सहकार पैनल इसमें बराबर अगर जीत के आया तो फेडरेशन की तरफ से अपना पैनल खड़ा करेगा और हर एक सोसाइटियों को मदद करेगा उनको डीम कन्वेंस, और इवन डीम कन्वेंस ही नहीं, ओसी भी दिलाने में पूरी मदद करेंगे जो बिल्डर लोग नहीं देते हैं। इसकी लड़ाई हमारा सहायक सहकार पैनल लड़ेगा। ओसी एक तकलीफ है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। आप कहता ओसी का क्या तकलीफ पेश किया? जितने सोसाइटीज है आप लोग घूमते हो, ओसीज का क्या प्रॉब्लम है सोसाइटीज में? क्या ओसी आज 80% सोसाइटियों की आज ओसी नहीं है। बिल्डर विदाउट ओसी, विदाउट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के उनको पोजीशन दे दिए हैं, जिसमें से आज तक काफ़ी सोसाइटियों का ऐसा रहा है कि वो ओसी ना होने की वजह से काफ़ी लोगों को लोन नहीं मिलते हैं, प्योर रीडेवलपमेंट में भी नहीं जा सकते हैं, पानी नहीं मिलता है। लेकिन मतलब इसका भी एक नया सादा मतलब सीधा साधा उदाहरण है कैंपा कोला को ओसी नहीं मिली और उसकी वजह से तो ये मुद्दा जो आज छोटी सोसाइटियों में छोटे तबके के लोग, मिडिल क्लास के, अपर क्लास के, सारे क्लास के लोग रहते हैं और इस मुद्दों को आज तक सॉल्व करना चाहिए। तो 35 साल से उस पर मजा कर रहे हैं, फेडरेशन के नाम पे खाली लूट मचा के रखे थे, लेकिन अब वो खाली यही 5 सालों में आते हैं, ये मुद्दे उनको आज तक दिखाई नहीं दिए। ये हमारा सहायक सहकार पैनल इस पूरे मुद्दे की लड़ाई लड़ेगा। अगर जीत के आया तो सबसे पहले हर बिल्डिंगों से उनका वो मंगाया जाएगा और वो उसी की लड़ाई लड़ेगा, धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के सामने और डीम कन्वेंस को और सरल प्रक्रिया में लाने की कोशिश करेंगे ताकि उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। आप कुछ ऐड करना चाहते हो? दिस इज अ रियल प्रॉब्लम, एज यू से डीम कन्वेंस का इशू है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स का इशू है। सोसाइटीज इन मुंबई आर फेसिंग ऑल दिस ट्रबल। वी वांट सॉल्यूशंस, कंटिन्यूस सॉल्यूशंस किस प्रकार से होगा? डीम ओसी का एक बहुत बड़ा इशू उन्होंने उठाया। बाकी इशू ओसी रेट्स एक ही होना चाहिए। मैं हमेशा मैं किसी के पास जाता हूँ तो ओसी का रेट अलग अलग रेट मुझे मिलता है हमेशा। तो यही एक प्रॉब्लम है मेरी तरफ से, और कुछ नहीं सर। We need to understand these problems. Number one, what is the time for deemed conveyance? Deemed conveyance आपने कहा कि 6 महीने के अंदर एक्चुअली होना चाहिए, तो डीम्ड कन्वेंस में खर्चा कितना, मिनिमम से मिनिमम कितना खर्चा होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए साहब, क्या है कि डीम्ड कन्वेंस में खर्चा 2000 का कोर्ट फी है, प्लस आप मैक्सिमम 50,000 60,000 खर्चा आप पकड़ सकते हो, उसके ऊपर खर्चा नहीं आता है। प्रॉब्लम है गाइडलाइंस की, गाइडलाइंस है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। इट्स नॉट अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, इट्स अ फेलियर ऑफ सिस्टम। एज ए सहायक वी आर फाइटिंग फॉर द सोशल कॉज सिंस पास्ट 3 years। ये 3 साल के दौरान हमने कम से कम 500 लोगों को न्याय दिलाया है, कई सोसाइटीज को हमने न्याय दिलाया है। ओसी जो है, ओसी एक बहुत गहरा मुद्दा है, इसमें शायद गवर्नमेंट ने का भी काफ़ी हद तक हाथ है इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करने का।
लेकिन अगर इसी मुद्दे को फेडरेशन ने उठाया होता तो शायद 30 साल में आज जो 80% का जो डेटा लोग सामने रख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं 40-30% पे आके अटक जाता। और ओसी का ही एक रिसेंट एग्जांपल था कैंपा कोला कंपाउंड। इलीगल स्ट्रक्चर आप खड़ा कर देते हो, आप महला पे महला बना देते हो, उसका ओसी होता नहीं है, पोजीशन दे देते हो। पोजीशन के बाद सोसाइटी या सोसाइटी मेंबर्स को पता नहीं होता है कि इस स्ट्रक्चर का ओसी है कि नहीं है। वो होने के बाद भी बीएमसी को आप जाओगे, आपको पानी का कनेक्शन नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी टैक्स आपको अलग से ये हाई रेट पे करना है। तो ओसी का जो समस्या है, ओसी का मुद्दा सुलझाया जा सकता है बशर्ते इसमें कोई एक थर्ड पार्टी इंटरवेन करे, आपको सपोर्ट करे। और वो मुद्दा सिर्फ एक ही जगह से सॉल्व हो सकता है, वो फेडरेशन। फेडरेशन के पास इतने पावर हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठ के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो उसकी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, आप उसको सरल तरीके से आप कम ये कर सकते हो और सोसाइटीज को ओसी दिला सकते हैं। डॉक्टर तिवारी, एक चीज ये भी है कि आपने बोला कि टाइम फ्रेम डीम कन्वेंस का 6 महीने के आसपास होना चाहिए, और जो आपने कहा कि अगर सोसाइटीज गरीब से गरीब छोटा तबके की सोसाइटी है तो 2000 का उनका कुछ फी, कोर्ट फी है, वो भर के वो खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और तो उसमें और भी खर्चा कम हो जाएगा। बिकॉज आज जहां हमने देखा कि बहुत सारे सोसाइटीज में वो कैपेसिटी नहीं है कि फाइनेंशियल। आपने कहा कि फेडरेशन की तरफ से आपका प्रिमा फेशी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होगा कि लॉ एकदम चीप लोगों को मिले, जैसे रिकवरी प्रोसेस। आई जस्ट कम बैक टू यू अगेन, रिकवरी प्रोसेस आल्सो। एंड ये जितने विंडोज है, उस विंडोज को रोकने की भी जरूरत है। अलग अलग विंडोज के सामने अलग अलग इंक्वायरी प्रोसेस शुरू कर देते हैं, अलग हियरिंग चालू कर देते हैं। इसका जरूरत कहीं खत्म करना पड़ेगा। विल कम बैक टू इट नाउ। रिकवरी, एक आपने देखा जितने सोसाइटीज आप गए थे, हर सोसाइटीज में रिकवरी का एक बहुत बड़ा तकलीफ है, डिफॉल्टर्स का लिस्ट है। आपने क्या देखा सोसाइटीज की तरफ? सोसाइटीज़ में डिफॉल्टर्स की दिक्कतें है कि जो फ्लैट ओनर्स नई बिल्डिंगें बनती हैं और फ्लैट ओनर्स आते हैं, उसमें किसी का बिल्डर के साथ डिस्प्यूट हो जाता है। वो बिल्डर के साथ जो डिस्प्यूट है वो सोसाइटी के साथ कंटिन्यू चलाने लग जाता है, और सोसाइटियाँ पैसा मांग नहीं पाती क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इसका प्रोसेस करना क्या है। 101 का जो प्रोसेस है वो बहुत से कम लोगों को पता है, और उसमें फेडरेशन ने आज तक कभी उनको गाइडलाइंस ना तो भेजी है। वो एक बुक है, बुक छापते हैं और बुक बेच देते हैं, जिससे उनको कुछ पता नहीं चल पाता। अगर ये बीच बीच में कहीं सेमिनार्स लेते रहें हर एरिया में, जैसे सेंटा क्रूज है, बांद्रा है, खार है, अगर सेमिनार्स लेवे और उसमें ये लोगों को बताएं कि 101 में किस तरह से रिकवरी होती है, क्या क्या उसमें हमारी तरफ से आपको मिलेगा, वकील मिलेंगे या जो कुछ भी है, तो ये काफ़ी आसान हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। We'll get back to you. This the default list in every society is a problem. आप भी एक संपादक हो, you have been writing on these particular issues. वैसे डिफॉल्ट वाले चीज में आपने क्या देखा है? सोसाइटीज में डिफॉल्टर्स तो मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज डिफॉल्टर्स, पैसे कैसे वापस लेना, रिकवरी प्रोसेस क्या है? See, society has to make application under section 101 to the concerned deputy registrar, assistant registrar. And along with the application, the society is supposed to provide some documents like copy of ledger account, resolution, etc. But my personal experience says that most of the time society fails in submitting those documents. And one of the reason I could say is that there is no proper guidelines from the federation, which could have helped the society to maintain accounts and all the register records in a proper way. Second thing, when the application is made, the AR or DR is supposed to scrutinize the application. I come across cases where it is not scrutinized, it is just kept for hearing. The defaulter is called, what he wants to say, or put it in writing or represent through advocate. So technically, even the defaulter doesn't know on what grounds he has to say. And society, in certain cases, they charge interest more than 21%, or instead of simple, they charge compound. And there are some charges which society cannot levy, or the charges which is not as per the resolution of the general body. So in most of the cases, society cannot support, cannot provide supporting evidences. So there is no question of getting the recovery certificate. But we come across cases where either the advocate misguides them in absence of federation's guidance. Advocate would say, okay, we'll put up the application, we'll get it done, we'll manage. And all these applications are submitted without proper scrutiny. And the result is that society spends money. But there's no hardly result. They will get. And there's no result, you say? Yes. And
I've seen some cases like instead of 4,000, societies claims lakhs of rupees, which fails. Now this is to be understood what it fails, and the person who spent society's money, whether it was managing committee or the administrator, then why he went ahead in spite of not having proper records and spent the society's money. So these are the issues. These are the issues. He's talking about Section 101 of the Maharashtra Cooperative Societies Act. That has to be implemented. बहुत सारे चीज इंटरेस्ट कितना डालना चाहिए, रिकवरी प्रोसेस कितना लंबा होता है, ये एक चिंता का विषय है. बिकॉज ये बहुत सारे क्वेरीज इस चैनल के पास भी आता है कि रिकवरीज के बारे में, हाउ लॉन्ग इज द प्रोसेस, व्हाट आर द फॉर्म्स टू बी फिल्ड अप, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हाउ फास्ट डू द एंटायर प्रोसेस टेक्स प्लेस, व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट कैन बी लेविड. तो ये चर्चा, व्हाट इज, आपने कहा कि द इंटरेस्ट दैट चार्ज कैन नॉट बी मोर देन द प्रिंसिपल अमाउंट, एंड यू कोटेड सर्टेन केस लॉज आल्सो अबाउट दिस, एंड ट्राइंग टू टेल द व्यूअर्स कि ये 101 का प्रोसीजर कितना टाइम लगता है. अल्टीमेटली लॉ इसलिए होता है कि कानून, इट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इमीडिएटली, एंड जस्टिस प्रिवेल्स व्हेन इट इज इमीडिएटली डन. The more you delay it, it's a loss for everybody. तो ये पूरे प्रोसेस क्या है 101 में? डॉक्यूमेंट्स देना, सबमिट करना, कितने टाइम लगता है, एंड व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी चार्ज, प्रिंसिपल से ज्यादा भी होना चाहिए. देयर आर सम जजमेंट्स दैट यू टॉक्ड अबाउट. There is a clear-cut cooperative commissioner and registrar of cooperative society of Maharashtra state. उनका एक गाइडलाइन है of somewhere of year 2002 or something. In that guideline उन्होंने clear-cut लिखा है कि क्या-क्या पेपर 101 की एप्लीकेशन के साथ आपको लगा के अटैच करके आपको डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपको सबमिट करने हैं. As far as there is a court fees time, if suppose आप 2 लाख रुपए का रिकवरी के लिए जा रहे हो, then on 1 lakh you have to pay 1% and excess of 1 lakh 0.5%. Like on 2 lakh we have to pay 1,500 रुपये as a court fee. जिस दिन केस आपका लॉज हुआ है उस दिन से लेके विदिन 90 डेज आपका 101 का एप्लीकेशन डिस्पोज होगा. There is a common practice, even deputy registrar also, they are not considering the fact principal is 1 lakh rupee, interest is 4 lakhs, and they are issuing the certificate of 5 lakhs. अगर आप सेक्शन 44A ऑफ MCS एक्ट 1960 ध्यान से पढ़िए, क्लियर कट लिखा गया है कि इंटरेस्ट कंपोनेंट कैन नॉट एक्सीड द प्रिंसिपल कंपोनेंट. आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है. ये दाम दुप्पट का बहुत वेल नोन प्रिंसिपल है, फिनोमिना है. ये मनी लेंडर्स एक्ट में भी आता है. इन दैट केस क्लियर कट उसमें जो ब्रीफिंग किया गया है 44A में, सोसाइटीज लिखा गया है वर्ड, इंक्लूडिंग द क्रेडिट सोसाइटी ऑल्सो. नाउ व्हाट इज सोसाइटी? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का अलग से लॉ आज तक बना नहीं है. Cooperative housing societies, they are getting registered under MCS Act 1960, and credit society are also getting registered under MCS Act 1960. तो both the societies are governed by the MCS Act. सोसाइटीज में ये सारी चीजें आ जाती, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी या शुगर सोसाइटी, जो भी है सब कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही आती है. वहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है. बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट ने या किसी ने डिपार्टमेंट ने इनको कभी सर्कुलर नहीं दिया है, ना डीआर ऑफिस का कभी ट्रेनिंग हुआ है, and they are wrongly interpreting the You're saying this one. 90 days से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. Within 90 days 101 has to be decided. Has to be approved, and what Yes. is the process? वो रिकवरी प्रोसेस कैसे होता है? रिकवरी प्रोसेस ऐसा है कि आपको एक बार सर्टिफिकेट मिल गया रिकवरी का, फिर यू हैव टू अप्रोच द फेडरल बॉडी. फेडरेशन के पास रिकवरी ऑफिसर्स हैं, फिर वो उसमें अटैचमेंट का ये सब आगे का प्रोसीजर चालू हो जाता है. मूवेबल, नो नो, ओनली इमूवेबल, नॉट मूवेबल. नो 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 नो, नहीं. This MCS Act means related to the flat. If you are the owner of society, then only society can proceed with 101. If suppose the actual owner मर गए हैं ड्यू टू सम रीजन, नहीं अवेलेबल या मर गए, नॉट इन केस ऑफ नॉट अवेलेबल, बट इफ ही डाइज, तो सोसाइटी कैन नॉट प्रोसीड 101 प्रोसीडिंग विद द लीगल हेयर्स ऑफ डिजीज्ड मेंबर. एक क्लियर कट प्रावधान है, लेकिन एडवोकेट भी यहाँ पे वही कर रहे हैं. अगर डिजीज्ड मेंबर भी है तो आंख बंद करके 101 की प्रोसीडिंग होती है. एंड इन सम केसेस इट इज अ वेरी रियली आई ओपनिंग. वी आर हैविंग द डॉक्यूमेंट, डिप्टी रजिस्ट्रार वो भी नहीं देखता है कि ये किसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है और रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हो जाता है. सेकेंडली, व्हाट वी आर गोइंग टू डू in 101 proceeding, as on date, lawyers are charging more than 30-40,000 from the society. If suppose सहायक सहकार पैनल will be there in federation, हम एक
लीगल पैनल बनाएंगे फेडरेशन के अंदर। 5,000 रुपया मात्र आपसे चार्ज किया जाएगा सोसाइटी से, और फेडरेशन के जो एडवोकेट्स होंगे वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे और 101 का सर्टिफिकेट लाके आपको देंगे। एंड सेकेंडली देयर वोंट बी एनी रिजेक्शन चांसेस, क्योंकि प्रोसीजर अगर फॉलो हो तो आपका 101 एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होता है, क्योंकि We'll come back to this. This is the committee that is going to fight the Federation of Cooperative Society election. They say it has been hijacked for 35 years by one particular committee. There is need for change. Change की जरूरत है. आप change enforce करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल हम चेंज लाएंगे। ये हमारा 15 तारीख को इलेक्शन है और मैं चाहूँगा कि जितने भी 3,700 सोसाइटियाँ इलेक्शन के लिए अपना नाम एनरोल किया उन्होंने, और वो सारे के सारे भारी संख्या में आके वोटिंग में भाग लें। This is the problems that the housing societies in Mumbai are facing are too many. You got problems with the committee, you got the way the society is appointed, you got the section 101 recovery, जो recovery होता है सबसे बड़ा headache है हर societies को, defaulters, the entire recovery process. Then you got also issues of redevelopment, deemed conveyance. We will get back to you continuously on these particular problems faced by these cooperative societies in Mumbai. As you say, the boast of Augustus, he found Rome of bricks, left it of marble. He found law too dear, left it cheap. He found law in a sealed envelope, left it a living letter. He found the patrimony of the rich and left it the inheritance of poor. This entire team that is going to represent the federation says that they will see that the law is absolutely cheap. आपको जो recovery process है, हर process में जो बहुत पैसे lawyers पे, advocates पे खर्चा होता है, this federation of societies assures that they will see the entire process, administration comes down, so that justice is not only delivered in letter and spirit but actually delivered. And the people with this committee, ये जो committee है, they promise to bring relief to the housing societies and the citizens of Mumbai and the people of Mumbai. That's all from this program from Santa Cruz. Back to the studios. Freedom of speech, expression, faith, worship and belief. Right to life, liberty and pursuit of happiness. आपका संवैधानिक हक हम लड़ेंगे. Watch Andolan only on Lemon News and Channel 1. क्या आपको आपका अधिकार मिल रहा है? ट्रांसलेट हमको मिलता नहीं, राशन हमको मिलता नहीं। कहीं आप अपने अधिकार से महरूम तो नहीं? हम लोग के लिए कुछ नहीं किया गया। हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ता कि कहाँ पास हुआ, कब हुआ। आपके आस पड़ोस में मिल रही हैं सुविधाएं? यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, या इन सुविधाओं से आपको रखा गया है दूर? सुविधा देना चाहिए। सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे। क्या आपकी आवाज नहीं सुनता है कोई? की आवाज दबा दी जाती है। हम बनेंगे आपकी आवाज। पूरा विश्वास है ये काम होएगा। संपर्क करें लेमन कंट्रोल रूम से। हमारा टेलीफोन नंबर है 022-2673-6209 या फिर SMS करें